السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد، میں ہوں سلما قاصر۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کل سے پاکستان کا 2 روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ صدر مسعود پزشکیان صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وفود کی سطح پر تبادلہ خیال ہوگا۔ صدر کی حیثیت سے ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا یہ پہلا دورہ پاکستان ہے۔ ایرانی صدر کے دورے سے برادرانہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں مونسون کے نتیجے میں نقصانات سے متعلق جائزہ اجلاس، جانی اور مالی نقصانات کے افسوسناک واقعات ہوئے۔ وزیر اعظم کی ذرائع مواصلات، سڑکوں کی بحالی اور تعمیر و مرمت پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت۔ وفاقی ادارے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر نقصانات کا تخمینہ لگائیں۔ نقصانات کے ہر ممکن ازالے کے لیے وفاق کی طرف سے امدادی پیکج دیا جائے گا۔ متاثرہ علاقوں اور عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے جلد گلگت بلتستان کا دورہ کروں گا، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ ضلع غزر میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ سیلابی رالوں سے متعدد گھروں، زرعی زمینوں اور بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا۔ عوام کو مشکلات کا سامنا۔ شمال مشرقی پنجاب، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ مزید موسلادھار بارش کا امکان۔ راولپنڈی، مری، گجرات، چکوال، اٹک، جہلم، سیالکوٹ، شیخوپورہ، ناروال، لاہور، یوب، مساخیل اور گردنواہ میں تیز بارش کا امکان۔ نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ پاکستان اور چین کے اسٹریٹجک تعلقات، اعتماد، غیر متزلزل حمایت اور مشترکہ عزم کی شاندار مثال۔ پاکستان چین کی منفرد اور گہری دوستی حالات اور عالمی چیلنجز میں بھی مضبوط ہے۔ دونوں ملکوں کی افواج پائیدار شراکت داری اور علاقائی استحکام کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتی رہیں گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا GHQ راولپنڈی میں چین کی فوج کے 98ویں یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب۔ چینی فوج کو مبارکباد۔ دفاع و سلامتی میں چین کے فوج کے کردار کی تعریف۔ چین کے سفیر کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں افواج پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف۔ چین کی فوج کے یوم تاسیس کی تقریب میں چین کے سفیر جانگ زیدونگ کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ سفیر نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا۔ تقریب میں تینوں مسلح افواج کے آفیسر، چین کے فوج اتاشی اور سفارت خانے کے حکام کی شرکت۔ ISPR۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی کراچی میں ملاقات۔ بلوچستان کی ترقی، امن و امان کی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو۔ عوامی فلاح، بنیادی سہولیات کی فراہمی اور ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کو یقینی بنایا جائے۔ بلوچستان کے عوام کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ صدر آصف علی زرداری کی وزیر اعلیٰ کو ہدایت۔ پاکستان امریکہ ٹیرف معاہدے اور حکومت کی مثبت معاشی پالیسیز کے ثمرات۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی کا رجحان۔ 100 انڈیکس میں 1644 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح 1,41,034 پر بند۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا اظہار اطمینان۔ سٹاک ایکسچینج میں تیزی، سرمایہ کاروں کے حکومتی پالیسیز پر اعتماد کی عکاسی ہے۔ وزیر اعظم۔ صدر مسلم لیگ نون محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم سالم الزابی کی ملاقات۔ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ متحدہ عرب امارات کے سرمایہ کاروں، اداروں اور کاروباری برادری کو پنجاب میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ پنجاب بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کے ساتھ سرمایہ کاری کے لیے بہترین انتخاب بن چکا ہے، مریم نواز۔ ایران کے صدر پاکستان آ رہے ہیں ایک دوست ملک کے سربراہ کے طور پہ، تو یہ ایک اہم سنگ میل ہے پاکستان کی فارن پالیسی میں۔ جب بھی کسی ملک کا سربراہ پاکستان آتا ہے تو یہ اس وقت اس کے وزٹ کو سابوٹاج کرنے کے لیے اس طرح کی پریس کانفرنسز کرتے ہیں۔
अपोजिशन सिर्फ तनकीद बराए तनकीद कर रही है। अपोजिशन के पास कोई पॉलिसी नहीं। कौम को बेवकूफ बनाने की कोशिश अफसोसनाक है। इन्हें मुल्क का कोई दर्द नहीं। बानी पीटीआई के दौर में हर मुल्क के साथ ताल्लुकात खराब किए गए। आज की अपोजिशन की न्यूज कॉन्फ्रेंस चूं चूं का मुरब्बा थी। जाती मफाद की खातिर चीखे मार रहे हैं। कल ईरानी सदर पाकिस्तान दौरे पर आ रहे हैं। जब भी किसी मुल्क का सरबराह पाकिस्तान आता है तो अपोजिशन वाले इस दौरे को सबूताज करने के लिए इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का अपोजिशन के एलामिया पर रद्द अमल। हुकूमत बलोचिस्तान की तरक्की और मसाइल के हल के लिए पुराज़िम। सूबे के मसाइल की निशानदही के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला। बलोचिस्तान के अवाम मुहिब्बे वतन है। बलोचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। बैरूनी दुश्मनों और फितनतुल हिंदुस्तान का मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। लॉन्ग मार्च शुरका के मुतालबात हुकूमत को पेश करेंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह। हुकूमती अरकान से मुस्बत बातचीत हुई है। बलोचिस्तान में पायदार अमन का क़याम हम सब की तरजीह है। अमन के लिए हर कोशिश में हुकूमत का साथ देंगे। रहनुमा जमात इस्लामी। आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखते हैं। जमहूरियत के फ़रोग़ में सहाफ़ियों का अहम किरदार है। डिस और मिस इन्फॉर्मेशन से निपटना एक चैलेंज बन चुका है। भारत के खिलाफ आलिया जंग में पाक फिजाइया की तरह पाकिस्तानी मीडिया ने भी भारतीय मीडिया को शिकस्त दी। भारत ने झूठी खबरों के जरिए अपने अवाम को गुमराह किया। पाकिस्तानी मीडिया की सच्चाई पर मबनी रिपोर्टिंग ने भारतीय अवाम को असल हकीकत से रुशनास करवाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। सीपैक खित्ते की तरक्की का मंसूबा। दूसरे मरहले के दौरान कारोबारी रवाबित का फरोग तरजीह। पाकिस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवानों को जदीद फनी महारतों की फराहमी नागुज़ीर। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती मिसाली है। नेफ्टेक और चीन का इदारा नौजवानों को फनी तरबियत फराहम करने के मौके फराहम करेगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल। इंसदार दहशतगर्दी अदालत सरगोदा ने 9 मई जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अहमद खान भुच्चर, राना बिलाल, अहमद चट्ठा समेत तमाम 50 मुलजम इश्तिहारी करार। गिरफ्तार मुलजिम इस्माइल को 25 साल कैद, 35.5 लाख रुपए जुर्माने की सजा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अर्ज़े पाकिस्तान तुझे सलाम। अगस्त आज़ादी का महीना। मुल्क भर में तारीखी जश्न की तैयारियों का आगाज। रवां साल 14 अगस्त इस आज़म की तजदीद के साथ मनाया जा रहा है कि दुश्मन को हर मैदान में शिकस्त देंगे। मारका हक के शहदा को खिराज अकीदत, गाजियों और जांबाजों को सलाम पेश किया जाएगा। नजरियाती और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत और वतन अजीज को पुरामन और मुस्तहकम बनाने के लिए कौम का अज़्म पहले से ज्यादा मजबूत और तवाना। अमरीका के साथ टैरिफ मुआहदा पाकिस्तानी बरामदात के लिए नए मौके फराहम करेगा। पाकिस्तानी बरामदात पर अमरीकी मार्केट में 19% टैरिफ लागू होगा। फैसला अमरीकी हुकाम की मुतवाज़िन नुक्ता नज़र की अक्कासी करता है। हुकूमत पाकिस्तान सरमायाकारी, मसनूई ज़हानत, क्रिप्टोकरेंसी, मादनियात, तवानाई और दीगर शोबों में अमरीका के साथ मजीद मुस्बत रवाबित और करीबी ताउन की मुंतज़िर है। इलामिया वज़ारत ख़ज़ाना। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन का मुतालबात के हक में सूबाई असेंबली के बाहर धरना। पुलिस का मुजाहिरीन पर शदीद तशद्दुद, आंसू गैस की शेलिंग। वफाक की तर्ज पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 30% डिस्पेरिटी अलाउंस में इजाफा करे। पेंशन इस्लाहात खत्म करे। मुजाहिरीन का मुतालबा। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली इस्लामाबाद एक्सप्रेस ट्रेन को काला शाह काकू के करीब हादसा। 5 बोगियां पटरी से उतर गई। 25 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी। इमदादी कार्रवाइयां जारी। वफाकी वजीर मोहम्मद हनीफ अब्बासी का वाकये का नोटिस।
सीईओ रेलवे और डीएस रेलवे को फौरी जाए हादसा पर पहुंचने की हिदायत। हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने ये कहा कि हमारे किसी भी जवान की, सैनिक की कोई भी क्षति नहीं हुई है। ये 10 जवान, इनके परिवार सवाल पूछ रहे हैं पूरे देश में कि राजनाथ सिंह जी, मोदी जी और अमित शाह जी, आप अपने देश के शहीदों का भी सम्मान नहीं कर पाए। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त, साबिक भारतीय फौजी हुकूमत पर बरस पड़े। बीजेपी हुकूमत की खामोशी हलाक होने वाले फौजियों के अहले खाना की तौहीन है। भारतीय हुकूमत कब तक अपनी नाकामियों पर पर्दा डालती रहेगी? साबिक भारतीय फौजियों की न्यूज कॉन्फ्रेंस। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से पाकिस्तान के हाथों फौजी नुकसानात की तफसील सामने लाने का भी मुतालबा कर दिया। भारतीय ऑपरेशन महादेव से जुड़े हक्कायक, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दा चाक। 28 जुलाई को होने वाले ऑपरेशन महादेव के नाम पर एक और झूठा मुकाबला सामने आ गया। एनडीटीवी के मुताबिक श्रीनगर में 3 अफराद को ऑपरेशन महादेव में मारने का दावा किया गया। ऑपरेशन महादेव का हर पहलू मशकूक, शनाख्तों का तजाद, जाली कार्रवाई की कलई खोलता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और फेक रिपोर्टिंग के जरिए मोदी सरकार पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने के मंसूबे पर अमल पैरा है। भारतीय फौज के हाथों गुज़श्ता माह 7 बेगुनाह कश्मीरी शहीद। जाली मुकाबलों में 5 कश्मीरी शहीद। भारतीय फोर्सेस ने 49 कश्मीरियों को गिरफ्तार, जबकि 22 की जायदादें जब्त कर ली। राजौरी में भारतीय पुलिस ने सरकारी उस्ताद समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। 5 अगस्त यौम इस्तेसाल के तौर पर मनाया जाएगा। आलमी ताकतें तनाज़ा कश्मीर के पुरअमन हल के लिए किरदार अदा करें। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। गजा पर इसराइली फोर्सेस की बमबारी, 24 घंटे में मजीद 83 फलस्तीनी शहीद, 554 जख्मी। खान यूनुस में इमदादी मरकज के करीब फायरिंग से 7 फलस्तीनी शहीद, 70 जख्मी। देर उल बला और अल-मवासी में इसराइली ड्रोन हमले में 8 फलस्तीनी शहीद। मशरक़ वस्ता के लिए अमरीकी खुसूसी एजेंसी स्टीव विटकोव और इसराइल में अमरीकी सफीर का दौरा गजा। इमदादी मराकज़ में खुराक के मुंतज़िर फलस्तीनियों से मुलाकात की। Enough. Ayub goes leg side. That's a good shot. लॉर्डर हिल में पहला टी20 मैच पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज के खिलाफ 14 रन से कामयाबी। 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। ग्रीन शर्ट्स के 6 विकेटों पर 178 रन। साइम अयूब की 57 रन की इनिंग्स। वेस्ट इंडीज 7 विकेटों पर 164 रन बना सका। मोहम्मद नवाज के 1 ओवर में 3 विकेटों ने मैच का रुख तब्दील कर दिया। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट से पाकिस्तानी तमाशाई को बाहर निकालने का वाकया। इंग्लिश काउंटी क्लब लंकाशायर ने माफी मांग ली। सिर्फ पाकिस्तान की शर्ट पहनने पर मद्दाह को नहीं निकाला गया, बल्कि हमारा इकदाम हिफाजती खदशात की बुनियाद पर था। किसी को तकलीफ पहुंची हो तो हम माजरत खा हैं। लंकाशायर। एशिया कप से काबिल होगी 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज। शेड्यूल जारी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान सीरीज 29 अगस्त से शारजा में शुरू होगी। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान मद्दे मुकाबिल। फाइनल 7 सितंबर को खेला जाएगा। और मंगोलिया में वर्ल्ड मास्टर रेसलिंग चैंपियनशिप पाकिस्तान के उसामा भट्ट ने चांदी का तमगा जीत लिया। मंगोलिया और काजाकिस्तान के पहलवानों को हराकर सेमीफाइनल में रसाई हासिल की। फाइनल में रूसी हरीफ के खिलाफ मामूली फर्क से गोल्ड मेडल जीतने से महरूम रहे। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
जब सरज़मीं ने पुकारा, सोचा न हमने दोबारा। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक। खबरनामे के आगाज में आपको बताएं कि ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान कल से पाकिस्तान का 2 रोजा दौरा करेंगे। ईरानी सदर पाकिस्तानी क़यादत से 2 तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल करेंगे। मरियम मलिक की रिपोर्ट देखते हैं। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का 2 रोजा दौरा कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और आला सतह वफ़द भी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के हमरा होगा। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी सदर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफूद की सतह पर बातचीत करेंगे। दोनों मुल्कों की क़यादत के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान सदर आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात करेंगे। It's a very significant, very important visit. With regard to our bilateral relations, it's a milestone, very significant. And I think with regard to maintaining peace in the region, it's also with that aspect very important regarding bilateral trade, investment, areas of mutual cooperation. So I think it's a very significant, very important. डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का बतौर ईरानी सदर पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। दोनों मुल्कों की क़यादत के दरमियान गुज़िश्ता अरसे के दौरान आला सतह रवाबित में इजाफा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 26 मई 2025 को ईरान का दौरा किया था। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आज़रबाईजान में होने वाले ECO सरबराह इजलास के मौके पर भी मुलाकात हुई, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और गुज़िश्ता फैसलों पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया गया। मई 2025 में भारत की जाहरियत और कशीदा सूरत हाल में ईरान ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइली जाहरियत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर पज़ेश्कियान के दरमियान मुतअद्दिद बार टेलीफोनिक राब्ता हुआ। पाकिस्तान ने आलमी फोरम्स पर ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमत के लिए भरपूर आवाज़ बुलंद की। Forces of instability and chaos continue to destabilize our region for their own geopolitical agendas. The unlawful, unjustified and uncalled for Israeli attack on Iran, a brotherly country and fellow ECO member state, were the most recent manifestation of this dangerous trend. Pakistan strongly condemns this act of Israeli aggression against Iran, and I offer my deepest condolences those martyrs by Israeli aggression. डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का दौरा पाकिस्तान दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए नहायत अहमियत का हामिल है। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खित्ते में अमन और सलामती के लिए एक दूसरे की मिसाली मुआवनत करने वाले बरादर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और ईरान के दोस्ताना, सिफारती, तिजारती और अवामी सतह के रवाबित 7 दिहाइयों से ज्यादा अरसे पर मुहित हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात की तारीख और अहमियत के हवाले से रिपोर्ट करेंगी नमरा सुहेल। क़याम पाकिस्तान के बाद सबसे पहले जिन ममालिक ने पाकिस्तान को तस्लीम किया उनमें से ईरान एक था। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को समझना हो तो ये काफी होगा कि इस्लामी इनकलाब 1979 के बाद पाकिस्तान वो पहला मुल्क था जिसने ईरान को तस्लीम किया। ये तारीखी कदम दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत और पायदार ताल्लुकात की बुनियाद बना। भारत के खिलाफ हालिया तनाज़ा हो या ईरान पर सेहूनी जारहियत, दोनों ममालिक ने एक दूसरे का भरपूर साथ निभाया। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर ईरानी पार्लियामेंट पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में भी ईरान की हिमायत में जुरतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया, जिस पर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत की बात की जाए तो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तरजीही तिजारत मुआहदा सन 2000 से नाफिज है। ईरान और पाकिस्तान ने सैकड़ों अशिया पर एक दूसरे को तिजारती रियायत दे रखी है। गुज़िश्ता बरस ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 100 मेगावाट बिजली की फराहमी के मंसूबे का इफ्तिताह किया। ताउन का दायरा अब सिर्फ बिजली और गैस ही नहीं
बल्कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, दिफा और दीगर शोबों तक फैलाया जा रहा है। दो तरफा तिजारत को आइंदा चंद सालों में $3 अरब से बढ़ाकर $10 अरब तक करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। दोनों मुमालिक की ये मुश्तरका सोच है कि खित्ते में पायदार अमन का क़याम कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे दरीना मसाइल के मुनसिफाना हल पर मुनहसर है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हालिया शदीद मानसून सीजन के तनाजुर में मुल्क भर और खुसूसन आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जानी और माली नुकसानात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मुतासरा इलाकों के नुकसानात के हर मुमकिन इज़ाले के लिए वफाकी हुकूमत की तरफ से इमदादी पैकेज दिया जाएगा। जल्द मुतासरा इलाकों का दौरा करूंगा। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में हालिया मानसून के नतीजे में जानी और माली नुकसानात पर जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाकी हुकूमत दुख की इस घड़ी में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत, इंतजामिया और अवाम के साथ शाना बशाना खड़ी है। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि तमाम मुतल्लिका वफाकी इदारे नुकसानात का तखमीना लगाएं। शदीद मौसमी सूरत-ए-हाल के नुकसानात से बचाव के लिए महकमे मौसमियात की पेशगी इत्तला के निज़ाम को हंगामी बुनियादों पर मौसर और फाल बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुतासरा इलाकों में जारी इमदादी कार्रवाइयों में जानी और माली नुकसानात से बचाव के लिए इक़दाम को तरजीह दी जाए। ज़राए मुवासलात और सड़कों और तामीर और मुरम्मत पर मकामी और मुतल्लिका वफाकी इदारे खुसूसी तवज्जो दें। इजलास में चेयरमैन NDMA ने ब्रीफिंग के दौरान बताया कि हालिया मानसून सीजन में अब तक मुल्क भर में मजमूई तौर पर 295 अमवात जबकि 700 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। 1600 से ज़्यादा घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं जबकि 336 मवेशी बारिशों की नजर हुए। ब्रीफिंग में बताया गया कि हालिया मानसून सीजन में नदी नालों में शदीद तुग़यानी है। तरबेला, चश्मा, तोंसा, कालाबाग के मकाम पर निचले जबकि चिनाब में हेडमराला और गुड्डू के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब का इम्कान है। हालिया मानसून सीजन अगस्त के आखिर में शदीद होने का इम्कान है। इस हवाले से बचाव के लिए भरपूर इंतजाम किए जा रहे हैं। इजलास में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान, वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार, वफाकी वज़रा और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। उन्होंने सेहत के शोबे में जारी मंसूबों और इस्लाहात पर पेशरफ्त से मुतालिक आगाह किया। वफाकी वज़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म से अपनी वज़ारत से मुतालिक भी ब्रीफ किया। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने बिलावल हाउस कराची में मुलाकात की। वज़ीर आला ने सूबे में अमन अमान की सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों से मुतल्लिक उमूर पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में बलूचिस्तान की तरक्की और मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। सदर ममलिकत ने सूबे में अमन अमान मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि अवामी फलाह, बुनियादी सहूलतों की फराहमी और तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाई जाए और अवाम का मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। अवामी जमहूरिया चीन की फ़ौज की 98वीं यौम तासीस के हवाले से GHQ रावलपिंडी में तकरीब मुनक्किद हुई। ISPR के मुताबिक चीन के सफ़ीर ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने चीनी फ़ौज को यौम तासीस की मुबारकबाद देते हुए चीन के दिफा और सिक्योरिटी में फ़ौज के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल ने पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती मुनफरिद और गहरी है। पाक चीन दोस्ती बदलते हुए हालात और आलमी चैलेंजेस में भी मजबूत है। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बाहमी एतमाद, गैर मुतसलसल हिमायत और मुश्तरका अज़्म की मिसाल हैं। दोनों ममालिक की अफवाज की पायदार शराकत दारी इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करती रहेगी। चीन के सफ़ीर ने PLA के यौम तासीस की तकरीब पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। चीनी सफ़ीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ भी किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया संगे मील उबूर। 100 इंडेक्स 1644 पॉइंट्स इजाफे के बाद बुलंद तरीन सतह 1,41,034 पर बंद हुआ। रिपोर्ट कर रहे हैं जमीर अब्बास। मौजूदा हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली के बायस पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदा तय पा गया है, जिसके बाद पाकिस्तान की अमेरिका को की जाने वाली एक्सपोर्ट्स में इजाफा मुतवक्के है। इस मुआहदे को सरमायाकार पाकिस्तान की मौशी तरक्की की जानिब अहम कदम करार दे रहे हैं। यही वजह है कि आज स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखी गई। आज दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1770 पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड हुआ, जिसके बाद मार्केट 1,41,000 की हद अबूर करते हुए तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,41,160 पर भी पहुंची। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 100 इंडेक्स के 1,41,000 पॉइंट्स की हद अबूर करने पर इत्मीनान का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी तेजी सरमायाकारों के हुकूमती पॉलिसी पर एतमाद की अकास है। वजीर आजम ने कहा कि कारोबार और सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह में शामिल है। उन्होंने कहा कि FBR में इस्लाहात से टैक्स निजाम में बेहतरी हुई है, जिससे कारोबारी बरादरी को सहूलत मिली। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मुआशी सिमत बेहतर और मईशत तरक्की की जानिब गामजन हो चुकी है। हुकूमत के
के इन मुआशी पॉलिसियों की वजह से महंगाई की शरह में कमी, जबकि तमाम मुआशी आशारिये मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं, जिसकी वजह से सरमायाकारों का एतमाद मजबूत हो रहा है। हिस्टोरिकली लो इन्फ्लेशन गवर्नमेंट ने जो है वो दिखाई है, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा सरमायाकारी इंटरनेशनल मार्केट्स में री रेटिंग, हमारे जो सोवेरियन बॉन्ड्स हैं उसके अंदर जो है काफ़ी तेज़ी देखी गई है इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर। उसकी वजह यही है कि हमारी क्रेडिट रेटिंग जो है B- पर आई, जो कि जो है S&P की तरफ से आई, और उसके बाद मार्केट में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखी गई। इन्फ्लेशन जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। इस स्पेकुलेशन पर इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा मुस्बत देख रहे हैं। मार्केट की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रही और ऑल टाइम हाई पर भी एक वक्त में मार्केट ट्रेड हुई है। आज मार्केट में मजमूई तौर पर 482 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसमें 199 कंपनियों के शेयर की कीमतों में तेजी, 245 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 38 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। आज बाजार हिस्सेस में 50 अरब 52 करोड़ रुपए की लागत के 3,52,000 सौदे हुए, जिनमें 60 करोड़ से ज्यादा के शेयर का कारोबार हुआ। आज मार्केट में कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइजर्स, ऑयल एंड गैस समेत सीमेंट और पावर जनरेशन की कंपनियों के शेयर्स में तेजी देखी गई। जमीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम अज़्ज़ावी ने लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात, इक़्तिसादी शराकतदारी, तालीम, साइंस और पायदार तरक्की में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और UAE के दरमियान ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तेफाक किया गया। इस मौके पर सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज ने सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की क़यादत को खराज तहसीन पेश करते हुए UAE की साइंसी तरक्की, माहौल दोस्ती और जदीद विजन को सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि UAE के साथ तालीम, तहकीक और माहौलियात के मैदान में इश्तराकी अमल को मज़ीद वुसअत देने के ख्वाहां हैं। उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकारों, इदारों और कारोबारी बरादरी को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि जब भी किसी मुल्क का सरबराह पाकिस्तान आता है, ये लोग दौरा सबोताज करने की कोशिश करने लगते हैं। ईरान के सदर कल से पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। अपोजिशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुल्क में अनारकी फैलाना है। PTI दौर में नाकिस पॉलिसीज की वजह से मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा। अपोजिशन के पास झूठे प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं। अपोजिशन के पास कहने को तो कुछ नहीं, सिर्फ तनकीद करना जानते हैं। झूठ, फसाद, इंतशार और प्रोपेगेंडा के अलावा इनके लामी में हमें कोई चीज नजर नहीं आई। काश रिसर्च करते और फॉरेन पॉलिसी पे कोई बात करते, काश रिसर्च करते, इकोनॉमिक पॉलिसी पे कोई बात करते, मॉनेटरी पॉलिसी पे कोई बात करते, मगर ना इनके पास इतनी समझ है, ना ये मुल्क का इतना दर्द रखते हैं। अब 9 मई का जवाब नहीं है, इसलिए अब इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके चीखो पुकार मचाया जा रहा है। जंग के दौरान भी ये भारतीय बयान को आगे लेकर चलते रहे, तो जिनके बैगेज में 190 मिलियन पाउंड हो, 9 मई हो, तोशा खाना हो, मैं समझता हूं कि उनकी मुकद्दर नाकामी के अलावा कुछ नहीं। पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मुस्तफा नवाज खोकर का खानदान रियल एस्टेट से ताल्लुक रखता है। काश ये लोग 190 मिलियन पाउंड केस पर बात करते। अब अवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि 9 मई केसेस के फैसले मेरिट पर हुए, सानहे के नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं। हसास तनसीबात और शहदा की यादगारों पर हमले किए गए। उन्होंने कहा कि मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। हुकूमत इक़दामात से मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। ज़र मुबादा के ज़खायर में इजाफा और महंगाई में कमी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में सूबाई असेंबली के बाहर एहतजाजी धरना दिया और खैबर रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस फायर किए, जिसके बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। वाज़ेह है कि खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन गुज़श्ता कई दिनों से एहतजाज पर हैं। उनका मुतालबा है कि वफाक की तर्ज पर सूबाई हुकूमत भी सरकारी मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस में इजाफा करे और पेंशन इस्लाहात को कलअदम करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी आज़ादी इजहार राय पर मुकम्मल यकीन रखती है और जमहूरियत के फरोग में सहाफ़ियों के किरदार को कदर की निगाह से देखती है। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जमहूरी अक़दार को मजबूत बनाने में मीडिया और सहाफ़ियों ने हमेशा से मौसर किरदार अदा किया है। डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन बाकायदा एक हथियार बन चुका है और ये हथियार कभी कभार इंतहा पसंद और दहशत गर्द और नफरत फैलाने वाले इस्तेमाल करते हैं और कभी कभार हमारा दुश्मन मुल्क भारत, हमने देखा किस तरीके से इन्होंने जंग के दौरान इस्तेमाल किया और जब जंग नहीं हो रहा है तो ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पड़ोसी ममालिक मनफी प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं। खातून अव्वल और रुकन कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा
عوامی کام کیے، عوام کی فلاح و بہبود پارٹی کا خاص رہا ہے۔ نواب شاہ میں سندھ پیپلز ہاؤسنگ فار فلڈ افیکٹیز منصوبے کے تحت مالکانہ حقوق دینے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آصفہ بھٹو زرداری نے کہا کہ آج کا دن ہم سب کے لیے فخر کا دن ہے۔ مکان کے مالکانہ حقوق کی سند کاغذ نہیں بلکہ محفوظ مستقبل کی ضمانت ہے۔ اس منصوبے کے تحت سندھ حکومت 21 لاکھ گھر تعمیر کر رہی ہے۔ ہر گھر کی زمین میں خاتون خانہ کے نام پر ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی عوامی سوچ، بصیرت اور محنت کا نتیجہ ہے۔ انشاءاللہ یہ گھر آنے والی نسلوں کے لیے بھی وقار اور تحفظ کی بنیاد بنیں گے۔ اور امریکہ کے ساتھ ٹیرف معاہدہ پاکستانی برآمدات کے لیے نئے مواقع فراہم کرے گا۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ان مذاکرات کے نتیجے میں یہ طے پایا کہ پاکستانی برآمدات پر امریکی مارکیٹ میں 19% ٹیرف لاگو ہوگا۔ یہ فیصلہ امریکی حکام کی متوازن اور مستقبل بین نقطہ نظر کی عکاسی کرتا ہے، جس کے تحت پاکستان کو جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کے مقابلے میں مسابقتی حیثیت حاصل رہے گی، بالخصوص ٹیکسٹائل جیسے ہم شعبوں میں جو ملکی برآمدات کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وزارت خزانہ کے مطابق حکومت پاکستان سرمایہ کاری، مصنوعی ذہانت، کرپٹو کرنسی، معدنیات، توانائی اور دیگر ابھرتے ہوئے شعبوں میں امریکہ کے ساتھ مزید مثبت روابط اور قریبی تعاون کی منتظر ہے۔ موجودہ ٹیرف انتظام پاکستان کے لیے امریکی منڈی میں اپنی موجودگی بڑھانے کا ایک سنہری موقع ہے۔ پاکستان اور امریکہ تاریخی تجارتی مذاکرات کی کامیاب تکمیل کے ساتھ اس بار ڈیجیٹل دنیا میں اقتصادی سفارتکاری کا ایک نیا باب رقم ہو رہا ہے۔ 31 جولائی کو پاکستان کے وزیر مملکت برائے کرپٹو اور بلاک چین بلال بن ثاقب اور صدر ٹرمپ کی ڈیجیٹل اثاثہ جات پر مشاورتی کونسل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر وہانس کے درمیان ہونے والی ملاقات میں عالمی سطح پر کرپٹو پالیسی کی ہم آہنگی اور پاکستان کے ویب 3 جدت کے علاقائی مرکز بننے کے منصوبوں پر بات چیت ہوئی۔ پاکستان اور امریکہ صرف تجارتی شراکت دار نہیں بلکہ کرپٹو قانون سازی میں تعاون کے امکانات پر غور کر رہے ہیں۔ اور لسبیلا بلوچستان میں پاک فوج کے ہیلی کاپٹر حادثے کو 3 برس گزر گئے۔ حادثے میں لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے ریسکیو مشن کے دوران ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہو گئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں وقار احمد۔ شہدائے وطن کو سلام۔ جنگ ہو یا ناگہانی آفات، پاک فوج ہر مشکل وقت میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ 1 اگست 2022 ایسا ہی ایک دن جب بلوچستان میں سیلاب متاثرین کی امداد اور ریسکیو مشن پر پاکستان آرمی کا ہیلی کاپٹر موسم کی خرابی کی وجہ سے حادثے کا شکار ہوا۔ ریسکیو مشن کی قیادت شہید لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کر رہے تھے۔ المناک حادثے میں لیفٹیننٹ جنرل سید سرفراز علی کے ساتھ بریگیڈیئر امجد حنیف، بریگیڈیئر محمد خالد، پائلٹ میجر سعید، میجر محمد طلحہ اور نائک مدثر فیاض نے جامع شہادت نوش کیا۔ المناک حادثے نے ہر آنکھ اشکبار کر دی، فضا کئی روز سوگوار رہی۔ سرفروشی ہے ایمان تمہارا، جرتوں کے پرستار ہو تم۔ انتہائی پروفیشنل آفیسر لیفٹیننٹ جنرل شہید سرفراز علی پاکستان آرمی میں مختلف اہم ترین عہدوں پر فرائض سر انجام دیتے رہے۔ نومبر 2020 میں ان کو 3 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ دسمبر 2020 میں کور کمانڈر کوئٹہ تعینات کیا گیا۔ بریگیڈیئر امجد حنیف حادثے سے کچھ عرصے پہلے ہی میجر جنرل کے عہدے پر ترقی پا چکے تھے۔ شہید لیفٹیننٹ جنرل سید سرفراز علی اور شہید ساتھیوں کی قربانی قوم کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ مشکل کی ہر گھڑی میں پاک فوج ملک اور قوم کی ہر ممکن مدد اور ہر قربانی کے لیے ہر دم تیار ہے۔ قوم اپنے شہیدوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ وقار احمد، پی ٹی وی نیوز۔ وفاقی وزیر امیر مقام کی صدارت میں 5 اگست یوم استحصال کی تیاریوں سے متعلق اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وفاقی وزیر کو یوم استحصال کی تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ کشمیری عوام کی آواز پوری دنیا تک پہنچائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 5 اگست 2019 کے بعد بھارت کے اقدامات، بین الاقوامی قوانین، کشمیری عوام کی خواہشات اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی مکمل خلاف ورزی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سال یوم استحصال کی اہمیت پاکستان کے بنیان و مرسوس میں کامیابی کی وجہ سے کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ امیر مقام نے تمام متعلقہ اداروں کو ہدایت کی کہ وہ یوم استحصال کو مؤثر انداز میں منانے کے لیے باہمی ہم آہنگی کے ساتھ کام کریں۔ وفاقی وزیر برائے قومی خزائی تحفظ رانا تنویر حسین سے مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر نے ملاقات کی۔ ملاقات میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو کبھی دبایا نہیں جا سکتا۔ پاکستان ہر فورم پر کشمیریوں کی آواز بلند کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت جاری رہے گی۔
پاکستان اور پاکستانی عوام ہمیشہ کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں. کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے. انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کے زیر اہتمام جموں کشمیر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین کشمیر کمیٹی رانا قاسم نور نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیریوں کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. بینگ اے پاکستانی، بینگ اے کشمیری، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کشمیر کانفلکٹ ریزالو نہیں ہوتا اس وقت تک ساؤتھ ایشیا میں پیس اینڈ سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. پوری ورلڈ میں ہمیں سنا جا رہا ہے، ہمارا نیریٹو ایکسیپٹ ہوا ہے، انڈین نیریٹو ریجیکٹ ہوا ہے. ہماری انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ گزارش ہے کہ وہ انٹروین کریں، ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کو دیکھیں، انڈین ایٹروسٹیز کو دیکھیں. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ حکومت بلوچستان کی ترقی اور مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے. صوبے کے مسائل کی نشاندہی کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا. اسلام آباد میں جماعت اسلامی کے رہنماؤں کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بلوچستان کے عوام محب وطن ہیں. بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے. بیرونی دشمنوں اور فتنہ ہندوستان کا متحد ہو کر مقابلہ کریں گے. وہ شر پسند عناصر، وہ لوگ جو وہاں پہ معصوم شہریوں کو جو ہے وہ قتل کرتے ہیں، ان عناصر کے لیے بلوچستان کے عوام، پاکستان کے عوام اور پاکستان کی حکومت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ہم حکومت پاکستان سے، وزیر اعظم سے یہ سبمیشن کرنے جا رہے ہیں کہ وہ ایک کمیٹی تشکیل دیں گے جس میں بلوچستان کی حکومت، بلوچستان کی اپوزیشن جماعتیں اور موجودہ وفد کے جو ارکان اور وفاقی حکومت اور وہاں پہ جو متعین ادارے ہیں جو بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے، بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، ان کے نمائندوں پہ مشتمل ہوگی. جماعت اسلامی کے رہنماؤں لیاقت بلوچ اور مولانا ہدایت الرحمان نے کہا کہ حکومتی ارکان سے مثبت بات چیت ہوئی ہے. بلوچستان میں پائیدار امن کا قیام ہم سب کی ترجیح ہے. انہوں نے کہا کہ امن کے لیے ہر کوشش میں حکومت کا ساتھ دیں گے. ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ بلوچستان میں امن لوٹ آئے، بلوچستان کے عوام کے جان مال عزت کا تحفظ ہو، اور بلوچستان جو پاکستان کا اساس معدنیات سے مالا مال ملک ہے، وہاں کے عوام کے حق ملکیت کو تسلیم کر کے پاکستان کی ایک پائیدار ترقی کا اس کو ذریعہ بنایا جائے. انشاءاللہ اس کمیٹی کی تشکیل کے ساتھ باقی ساری چیزوں پر بھی عمل درآمد شروع ہو جائے گا. جب زمین نے پکارا سوچا نہ ہم نے دوبارہ. یوم آزادی مارکہ حق 14 اگست وہ تاریخی دن ہے جب ایک آزاد اور خود مختار ریاست کا خواب حقیقت میں بدلا. پاکستان کی آزادی کی تاریخی کہانی پروفیسر محمد ریاض کی زبانی آگاہ کریں گے رانا افتخار حسین. یوم آزادی تجدید عہد کا دن ہے. یہ دن ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے. یوم آزادی مارکہ حق کے موقع پر پروفیسر محمد ریاض نے جدوجہد آزادی پاکستان کے حقائق بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ 1947 میں پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کا پہلا اجلاس کراچی میں منعقد ہوا. 11 اگست 1947 کو قائد اعظم کو دستور ساز اسمبلی کا پہلا صدر منتخب کیا گیا. لیاقت علی خان نے 12 اگست کو 2 اہم قراردادیں پیش کی. پہلی قرارداد قائد اعظم اور دوسری پاکستان کے قومی پرچم سے متعلق تھی. 12 اگست کو لیاقت علی خان نے رزو پیش کیا، جس کے 2 رزو پیش کیے. ایک کے تحت محمد علی جناح کو آج کے بعد تمام ڈاکومنٹ میں قائد اعظم محمد علی جناح لکھا جائے. دوسرا رزو تھا کہ پاکستان کا جھنڈا، مسلم لیگ کا تو پورا گرین تھا، وائٹ جو ہے یہ مائنورٹیز کے لیے رکھا گیا ہے. 13 اگست کو ماؤنٹ بیٹن کو کراچی بلایا گیا اور 14 اگست کی صبح 9 بجے دستور ساز اسمبلی کے اجلاس میں اقتدار پاکستان کو منتقل کیا گیا. 14 اگست کی صبح پانچوں اسمبلی کے اجلاس میں 9 بجے صبح
ये ट्रांसफर ऑफ पावर होता है। 14 अगस्त 1947 की सुबह दस्तूर साज असम्बली को इक़्तिदार की मुंतकली हुई। यही हमारा यौम आज़ादी है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। राना इफ्तिखार अहमद की रिपोर्ट आपने देखी। कश्मीरी हर साल मिली जज्बे के साथ पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाते हैं, लेकिन इस बार बयानुल मरसूस की शानदार कामयाबी के बाद कश्मीरियों का जोशो खरोश मजीद बढ़ गया है। जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से रिपोर्ट करेंगे अदील अहमद खान। ये नज़ारा भी चश्मे फलक ने कम ही देखा होगा कि हालिया पाक भारत जंग के दौरान जब दुश्मन सिविल आबादी को निशाना बना रहा था तो कश्मीरी अवाम इन हालात में भी सड़कों पर थे। यहाँ तक कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में भी अवाम घरों से बाहर थे और पाक फौज के साथ भरपूर यकजहती का इजहार कर रहे थे। ये कश्मीरियों की पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी थी और इसकी जर्री अफवाज पर कामिल यकीन था। यही वजह है कि मार्का हक की कामयाबी पर कश्मीरी भी किसी भी मुहिब्बे सादिक पाकिस्तानी से बढ़कर शादमा था, क्योंकि ये फतह कश्मीरियों की फतह थी। कश्मीरियों के अजली दुश्मन भारत की पसपाई पर हर कश्मीरी खुशी से सरशार था। मार्का हक में जिस तरह फौज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के गुरूर को खाक में मिलाया और हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी, उससे कश्मीरियों का हौसला बुलंद हुआ। जिस तरह से भारत कश्मीर फ्लैग ऑपरेशन के बाद जो तासुर देने की कोशिश की दुनिया को कि शायद मसला कश्मीर खत्म हो गया और सिर्फ मजहबी मसला रह गया, वो मसला फिर दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन मुल्क के सरबराह ट्रंप की जुबान से निकला कि तनाज़ा तलब मसला ही कश्मीर है। यही वजह है कि कश्मीरी अवाम इस बार पाकिस्तान का यौम जश्न आज़ादी पहले से भी बढ़ चढ़ कर मनाएंगे, क्योंकि दोहरी खुशियां हैं। एक तो मार्का हक की कामयाबी और दूसरी कश्मीरियों के सबसे बड़े हिमायती और वकील पाकिस्तान की यौम आज़ादी की। सो अब की बार दोहरा जश्न होगा। पूरी कौम जो है ना आज इस साल जो है ना वो दुगनी खुशी मनाएगी। एक तो बयानुल मरसूस की कामयाबी और दूसरी 14 अगस्त। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये दोनों कामयाबियों ने जो है ना इस 14 अगस्त को बहुत स्पेशल बना दिया है। कश्मीरी अवाम मार्का हक और पाकिस्तान के जश्न यौम आज़ादी की खुशियाँ मिलाकर नए वलवले और जोशो खरोश के साथ दोहरे जश्न की तैयारियों में मसरूफ हैं। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। मार्का हक में कामयाबी के बाद 78वां यौम आज़ादी कौमी यकजहती और अवामी जोशो खरोश का मजहर है। इत्तेहाद और यगानगत का पैगाम लिए मुल्क भर में आज़ादी का जश्न शायान शान अंदाज में मनाने का आगाज हो गया है। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे सरफराज शेख। मार्का हक में फतहयाबी के बाद पाकिस्तानी कौम यौम आज़ादी मिली जोशो जज्बे से मनाने के लिए खुशी से सरशार है। माह अगस्त सरजमीन वतन की आज़ादी की सालगिरह का महीना है। भारतीय फस्तायत के खिलाफ पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने अपनी शुजाअत व बहादुरी से कौम को पूरी दुनिया में बेमिसाल इज्जत व मर्तबे से नवाजा। मुल्क व मिल्लत की नामूस का आज़म लिए आज कौम का हर फर्द कौमी यकजहती का पैगाम दे रहा है। मार्का हक की जो सेलिब्रेशंस हैं वो पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से की जा रही हैं, 2500 तकरीबात 150 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे इंशाल्लाह जारी रहेंगी। पाकिस्तान एक जिंदा कौम है, पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना था और कोई इसको मैली नज़र से देखेगा तो पाकिस्तान की अफवाज इस काबिल हैं कि वो आंखें भी निकाल सकती हैं और उसको मुंह तोड़ जवाब भी दे सकती हैं। मुल्क भर में तकारीब, रैलियां और सकाफती प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जा रहा है, जहां अवाम अपने जज्बे, मोहब्बत और वाबस्तगी का इजहार कर रहे हैं। हमारी फौज ने, हमारी फ़ज़ाइया ने ख़ास तौर पे ये पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया कि पाकिस्तान की फौज नाकाबिल तस्खीर है। मार्का हक में कामयाबी ने हमें सिखाया है कि इत्तेहाद ही हमारी असल ताकत है। हालिया चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तानी कौम ने साबित कर दिया है कि जब भी मादरे वतन को ज़रूरत पड़ी हर फर्द अपने वतन की हुर्मत पर मर मिटने को तैयार होगा। मार्का हक में हमने हिंदुस्तान को शिकस्त दी है। हमारी पाक अफवाज ने बड़ी जलेरी के साथ, जुर्रतमंदी के साथ और बड़ी टेक्निक के साथ उसे शिकस्त दी। पाकिस्तान की सालमियत, यकजहती और तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है। हम मिलकर फितना हिंदुस्तान को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। मार्का हक में भरपूर कामयाबी के बाद आज पूरी पाकिस्तानी कौम ये इत्तेहाद कर रही है कि हम अपनी खुद मुख्तारी, अपनी सालमियत और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए कोई समझौता नहीं करेंगे। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा।
गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी का कहना है कि इस साल 14 अगस्त का जश्न मामूल से कहीं ज्यादा जोशो खरोश के साथ मनाया जाएगा। गवर्नर हाउस कराची में यौम आज़ादी के सिलसिले में मुनाकिदा परचम कुशाई की तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि इस साल 14 अगस्त का जश्न इसलिए मुख्तलिफ और नुमाया है कि हमारी मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त दी और पूरी कौम ने इत्तेहाद और यगानगत का बेमिसाल मुजाहरा किया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपनी खोई हुई मकबूलियत बरकरार रखने के लिए हिंदुत्व पर मबनी कौम परस्ती के जुनून को हवा देने के लिए ऑपरेशन शिव शक्ति के नाम पर फेक इनकाउंटर्स में बेगुनाह शहरियों की जानें ले रही है। तफसील से आगाह करेंगे ख्वाजा मोहम्मद कलीम। मोदी सरकार की फौज ने मुतशद्दद हिंदू कौम परस्ती का मसनूई बयानिया बनाने के लिए मजीद 2 बेगुनाह अफराद को LOC पर शहीद कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये दोनों दहशतगर्द थे और दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। भारतीय मीडिया का दावा है कि मरने वालों से 3 हथियार भी बरामद हुए। भारतीय प्रोपेगेंडे के मुताबिक ऑपरेशन शिव शक्ति इंटेलिजेंस यूनिट्स और पुलिस में बाहमी इश्तराक से किया गया। ताहम ये कार्रवाइयाँ सोचे समझे स्क्रिप्ट के तहत मिलिट्रीइज्म के फ़रोग़ की नाकाम कोशिशें हैं, जो न सिर्फ कई सवालात को जन्म देती हैं बल्कि तनकीद को दबाने, बदउनवानी, महंगाई और पॉलिसी की नाकामियों से तवज्जो हटाने की कोशिश हैं, क्योंकि बीजेपी की हुकूमत अपने अंदरूनी इख्तलाफात, मुआशी ज़वाल और इंटेलिजेंस नाकामियों पर शदीद तनकीद की जद में है। मोदी सरकार अपने अंदरूनी बहरान को छुपाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर मसनूई और फर्जी खतरात खड़े कर रही है। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। इस्लामाबाद में तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान भारतीय इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि भारत ने बगैर किसी सबूत पे पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान की जानिब से शफाफ तहकीकात की पेशकश भी रद्द कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान अहम इलाके और आलमी उमूर पर बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है और खित्ते में अमन का ख्वाह है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की जारी कार्रवाइयों के दौरान गुज़श्ता माह जुलाई में 7 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद किया। KMS के मुताबिक इनमें से 5 कश्मीरियों को जारी मुकाबलों में शहीद किया गया। भारतीय फोर्सेज ने मुहासरे और तलाशी की 144 कार्रवाई और घरों पर छापों के दौरान 49 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए अफराद में से बेशतर पर काले कवानीन, पब्लिक सेफ्टी एक्ट और UAPA लागू किए गए। गुज़श्ता माह भारतीय फोर्सेज की तरफ से ताकत के वहशियाना इस्तेमाल के नतीजे में 51 कश्मीरी जख्मी हुए। काबिज भारतीय इंतजामिया ने इस अरसे के दौरान 22 कश्मीरियों की अबलाग जब्त कर ली। जिला राजौरी में भारतीय पुलिस ने एक सरकारी उस्ताद समेत 4 अफराद को गिरफ्तार किया। इन्हें भारतीय फोर्सेज के मजालिम के हवाले से मवाद सोशल मीडिया पर अपलोड करने की पादाश में गिरफ्तार किया गया। काबिज इंतजामिया ने जिला कुलगाम में एक शहरी मोहम्मद अशरफ की 10 लाख रुपए मालियत की एक कार जब्त कर ली। मोहम्मद अशरफ पहले से भारतीय जेल में कैद हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, मुस्लिम लीग, तहरीक हुर्रियत और नेशनल फ्रंट ने 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। उन्होंने मोदी हुकूमत की तरफ से 5 अगस्त 2019 को मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके गैर कानूनी इक़दाम को इलाके में आबादी के तनासुब को तब्दील करने की मनसूबाबंदी भारतीय साजिश का हिस्सा करार दिया। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, गिज़र के इलाके वादी अशकोमन में गुज़श्ता रोज़ होने वाली तूफ़ानी बारिश से सैलाबी रेलों ने मुतादिद घरों, ज़मीनों और बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुँचाया है। गिज़र से हिदायत शाह की ये रिपोर्ट देखिए। गुज़श्ता शाम प्रापर इशकोमन में तूफानी बारिश के बाद फैज़ाबाद और दाऊद आबाद बुरी तरह मुतासिर हुए। ज़िली इदारे सुबह सवेरे से बहाली का काम जारी रखे हुए हैं। नुकसानात का अंदाज़ा लगाने के लिए क्योंकि अंधेरा था तो हम रात को कोई 11-12 बजे वहाँ से वापस आ गए। इंस्ट्रक्शंस हमने अकॉर्डिंगली रास्ते से इशू किए। सुबह हमारे जितने डिपार्टमेंट्स थे, वाटर मैनेजमेंट, CNW, वाटर एंड पावर, वाटर मैनेजमेंट, हेल्थ, 1122, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स थे सबको हमने मोबिलाइज किया साइड पे। उन्होंने जाकर एक चीज़ को असेस किया है, नीड असेसमेंट की है। क्लाउड बर्स्ट की वजह से और ये क्लाइमेट चेंज का नतीजा आप लोग के सामने है। स्कूल, हेल्थ सेंटर्स, माल मवेशियों के तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है, दरख्तों का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। बड़ी चैनल जो है इस गांव की, फैज़ाबाद और मोमिनाबाद की, वो पूरा डैमेज है। दरबसा नाले से लेके सरबंद तक अगर ये 10-8 दिनों के अंदर अंदर अगर इसको नहीं खोला गया तो ये सारा फसल जो है
पूरे गाँव के तबाह हो रहा है। मुतालबा ये करूंगा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से, चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान से कि आप फौरी तौर पे प्रॉपर इशकोमन में जो सलाह पाए है, इशकोमन फैजाबाद, बाला और पाइन में इमरजेंसी नाफिज करे। एकेडियन, AKRSP और MID के नुमाइंदे भी इमदादी सरगर्मियों में शरीक हैं। और 2022 के मुकाबले में इस वक्त जो 2025 में जो फ्लड आ गया है उसकी इंटेंसिटी और उसके जो डैमेजेस है वो बहुत ज़्यादा है। हिदायत शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, जिला गजर। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। पहले मैच में 14 रन से कामयाबी समेटकर 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। 57 रन की इनिंग्स और 2 विकेटें हासिल करने पर साइम अयूब मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। तफसील जानते हैं मुजीबुल हक से। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर लॉडरहिल में वेस्ट इंडीज के कप्तान शे होप ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। पाकिस्तान ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 178 रन बनाए। साहिबजादा फरहान और साइम अयूब ने इनिंग्स का आगाज किया तो 26 के मजमूई स्कोर पर साहिबजादा फरहान 14 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। दूसरे विकेट पर साइम अयूब और फखर जमान के दरमियान 81 रन की पार्टनरशिप कायम हुई। साइम अयूब 38 गेंदों पर 57 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। उनकी इनिंग्स में 2 छक्के और 5 चौके शामिल थे। फखर जमान 28, हसन नवाज 24, मोहम्मद नवाज 9 और फहीम अशरफ 15 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान सलमान अली आगा 11 और मोहम्मद हारिस 6 रन के साथ नॉट आउट रहे। वेस्ट इंडीज की जानिब से शमर जोसेफ ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। 179 रन के हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज की टीम मुकर्रर ओवर्स में 7 विकेटों पर 164 रन ही बना सकी। जॉनसन चार्ल्स और जियल आंद्रे ने टीम को 72 रन का जिम्मेदाराना आगाज फराहम किया। दोनों ने 35-35 रन बनाए। ओपनर्स के आउट होते ही पाकिस्तानी बॉलर्स मैच पर हावी हो गए और वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं दिया। शाहिद होप 2, गोदाकेश मोती 0, शरफान रथफोर्ड 11, रोस्टन चेज 5 और रोमारियो शेफर्ड 12 रन बनाकर चलते High, it's skied out to deep cover and safely taken. And he's got him straight away. 110 रन पर 7 विकेटें गिरने के बाद जैसन होल्डर और शमर जोसेफ ने स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन टीम को कामयाबी ना दिला सके। होल्डर ने 12 गेंदों पर 30 और जोसेफ ने 21 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद नवाज ने 3 और साइम अयूब ने 2 विकेटें हासिल की। शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर साइम अयूब प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। मुजीबुल हक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम से पाकिस्तानी तमाशाई को बाहर निकालने पर इंग्लिश काउंटी क्रिकेट क्लब लंकाशायर ने माफ़ी मांग ली। चंद रोज़ कबल भारत और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट मैच के दौरान पाकिस्तानी मद्दाह फारूक नज़र ने वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जिसमें दिखाया गया कि किस तरह सिक्योरिटी एहलकार ने उनसे कहा कि वो अपनी सब्ज़ रंग की पाकिस्तान टीम की टी-शर्ट को ढांप लें। फारूक नज़र ने यह दरखास्त मानने से इनकार किया, जिसके बाद पुलिस एहलकारों ने उन्हें स्टेडियम से बाहर निकाल दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लंकाशायर की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि इस रवैये से किसी को तकलीफ पहुंची हो तो हम माजरत खा हैं। सिर्फ पाकिस्तान की शर्ट पहनने पर मद्दाह को नहीं निकाला गया, बल्कि हमारा इक़दाम हिफाजती खदशात की बुनियाद पर था। इसके साथ ही बुलेटिन का वक्त खत्म हुआ। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दुरुस्त हर